اگر آپ کے گھر پہ نا دیوالی کی مٹھائی آئے ہو نا تو ابھی جو آپ نے باتیں بولی نا اس خوشی میں ارے ہماری بھائی طرف سے کھا لیجیے. ارے بھائی دیوالی کی مٹھائی اٹھائی تو لات ماروں میں دیوالی کی مٹھائی اٹھائی کو کچھ مانتا نہیں. مائی دیوالی گاڈ. یہ وہ کیونکہ میں اللہ کے ساتھ اگر کسی کا بھی نام لیا جائے اسے نہیں مانتا. بھائی لوگوں اب آپ لوگوں کو پتا لگ گیا کسی مسئلے کو دیوالی کی مٹھائی مت بھیجنا. آپ کی مٹھائی لات لگے گی, ڈسٹ بن میں جائے گی, بھائی پیسے آپ کے ضائع ہوں گے, مسئلے کھائیں گے نہیں, مٹھائی مت اس میں بھیجنا اللہ اس کے کو. سوا کسی کا جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. جی عبید الرحمان صاحب, ہاں بھائی یہ استقبال ہے آپ کا. آخر قتل کرنا گناہ ہے آپ کے نزدیک یہ آیت کے مطابق؟ یار پہلے ہے نا؟ آج کے ٹاپک پہ بات کر لو نا یار. اچھا آج کی ٹاپک تو نہیں ہے نا سامنے بھائی, یہ جو ابھی جس ٹاپک پہ چل رہا تھا بات اسی ٹاپک پہ میں اللہ کے کا ساتھ لڑائی ٹاپک کیسے یہ ہے, ہوتی ہے, اسی ٹاپک پہ اللہ کے ساتھ لڑائی کیسے ہوتی ہے وہ بتا دے پہلے. اللہ کے ساتھ لڑائی نہیں, اللہ بندوں کے ساتھ ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے لڑاتا نہیں ہے. نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اچھا یہی اللہ ہے لڑاتا سزا. ہے. ایٹم ایک منٹ بھائی, I'll give you the entire chance. اوکے گائز آپ لوگوں نے سنا, اللہ آزمانے کے لیے بندوں کو آپس میں لڑاتا ہے. یہی تو ہم سٹریم کر کے اتنے سالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج دیکھیے ان کے منہ سے حقیقت نکل گئی. اللہ لڑاتا ہے انسانوں کو. اللہ کفر کو اور امن والوں کو جب آزماتا ہے تو لڑاتا ہے. ہاں تو لڑائے گا, آزمانے کے لیے لڑاتا ہے. آزمانے کے لیے لڑاتا ہے نا, واہ بھائی واہ. آزمانے کے گائز لیے لڑاتا ہے نا ہمارے کہ تمہارے عبید اندر الرحمان کتنا عزم ہے, صاحب کی تمہارے اندر امن کا کتنا عزم ہے. ارے رکے رو بھائی, ہمارے عبید الرحمان صاحب کی سچائی کے لیے ان کے لیے گلاب پھینکو یار سب لوگ. چلو ایڈم کنٹینیو. ہاں بولو. بولو. اللہ آزمانے کے لیے لڑا رہا ہے, یہی آیت ہے نا اس میں, تاکہ کفر کو اور اسلام جو ہے, کفر اور اسلام یہ ہو جائے, سامنے آ جائے کہ کفر کیا ہے اسلام کیا ہے, سامنے آ جائے. سپاری تھوک دو نا پہلے. سپاری نہیں, میں وہ کھا رہا ہوں, سادہ کھاتا ہوں میں, سپاری نہیں کھاتا ہوں. دیکھے کیسا پکڑا میں, تھوک دو نا. نہیں میں سادہ کھا رہا ہوں, میں صاف بولا نا, میں سپاری میں گندی چیز نہیں کھا رہا ہوں نا, نجس چیز نہیں کھا رہا ہوں نا. میں نجس کھاتا ہی نہیں, نجس بولتا ہوں. میری دونوں عادت نہیں ہے, نجس کھانا بولنا دونوں نہیں ہے. اچھا چلو بات کرو. میں جو بول رہا ہوں آج میں تم کو پڑھ کے اچھا بتاتا ویسے ہوں. ایک سیکنڈ بھائی, اللہ نے جو کتاب کا بولا ہے نا, بھائی ایک منٹ بھائی, آواز آ رہی میری بھائی؟ سپاری تو لکڑی کی بنتی ہے نا, اور لکڑی درخت سے نکلتی ہے, تو لکڑی نجس کیسے؟ نشہ نجس, نشہ. سپاری میں تو نشہ نہیں نا ہوتا, سپاری تو لکڑی سے نکلتی ہے اور لکڑی درخت کی ہوتی ہے. بھائی تو نشہ بھی تو لکڑی سے نکلتا ہے نا. نہیں تو نجس کیسے ہوگی؟ ابھی سپاری میں تو نشہ نہیں ہوتا. نجس اس طرح سے ہوا جیسے بہت سی چیزیں ہیں, ابھی بہت سی چیز سپاری میں نجس ہوتی نشہ ہے. نہیں ہوتا. سپاری میں نشہ نہیں ہے, مگر ان کے سوچ میں تو یہی چیز ہے کہ میں نشہ کر رہا ہوں نا. کس نے کہا؟ یہی انہوں نے کہا تم سپاری کھا رہے ہو. اب لوگ تو یہی سوچیں گے کہ نا بھائی یہ سپاری کھا رہا ہے تو شاید وہ کچھ نشہ کر رہا ہوگا سپاری میں. میں تمہاری یہ بات بھی جو ہے نا تمہاری تم کو آج ہے نا گیان دیتا ہوں میں. سنو, کیا نشیور چیز, ہر نشیور چیز نجس ہوتی ہے؟ نشہ نجس جو ہے نا, نشہ حرام ہے, فطرت کے خلاف ہے. میں سوال کیا نشہ حرام ہے فطرت کے خلاف ہے وہ نہیں پوچھا. میں آپ سے یہ پوچھا کیا نشیور چیز جو نشہ جس سے ہوتا ہے کیا وہ نجس ہوتی ہے؟ اس میں مجھے شبہ ہے, میں نہیں پورا بول سکتا نجس ہوتی ہے کہ نہیں, مگر یہ جو ہے نا پھر بڑی بڑی فطرت باتیں کے کرتے ہو خلاف. ادھر آ کے. نہیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نجس مت اکثر بولو, چیزیں جیسے نجس مت سپاری کو بولو. نجس کیسے کہہ دیا تم نے, یہ بتاؤ. ابھی جیسے سڑکیں بنائی جاتی ہے, اکثر نشائیں جو نشہ کیا جاتا ہے, تو وہ تو سپاری کو نجس کیسے بنا دیا وہ نجس بتاؤ. ہوا نا. سپاری پہ کیا سپاری پیشاب نہیں کر کے اس نجس ہے کی نا سلاخیں بھائی, میں بناتے ہیں سپاری کیا؟ کھا رہا ہوں نجس نہیں ہے, مگر
जो जो तुम बोलोगे तो लोग तो वही तो कहेंगे ना कि भाई ये सुपारी खाए तो बोले नजर ही कर रहा है, मगर मैं सादा खा रहा हूँ ना, मैं सादा मीठा खा रहा हूँ ना। तो सुपारी में नजस क्या है वो बता दो। भाई सुपारी में नजस का है क्या? नजस सुपारी नजस नहीं है, सुपारी कैसे नजस है? तो तुमने सुपारी क्यों तो बोला सादा सुपारी सुपारी है। नजस है, मैं नहीं खाता, तुमने अभी वो बोला। वो तो आदमी अपने टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए खा रहा है मुंह पे। अभी तुमने बोला सुपारी नजस है, मैं नहीं खाता, तो सुपारी नजस कैसे वो बताओ। भाई झूठ मैं बोलते हो तुम तुम्हारी यहाँ पे सोच आके। के ऊपर तुम्हारे सोच के ऊपर कॉल डाला हूँ कि तुम सोच रहे हो कि शायद मैं सुपारी खा रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ या नजस होगा, तो ये भाई गुटखा तो नजस किसी ने नहीं बोला है, ही नहीं था, ये बोल सुपारी रहा हूँ बोला था, तुमको। तुमने झूठ क्यों बोला कि सुपारी नजस है। अरे तो तुमको सुपारी समझ में आ रहा है ना, मेरे को गुटखा समझ में आ रहा है ना। साहिल के अपने मुंह से सुपारी बोल रहा था यार, ये क्या बंदा है यार। नहीं वो सुपारी अपनी बात खा के, नहीं वो सुपारी अरे खा के बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बोलो। सुनो अल्लाह सुनो जो है सुनो वो सुनो लड़ाई कराता है, उसके बाद क्या? सुनो। अच्छा वो एडम छोड़ो, ने सवाल किया था कि लड़ाई अल्लाह कराते से हैं ना। क्या सवाल किया था? एडम आपने क्या सवाल किया था? अल्लाह से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या सवाल पूछा था? किया था कि कुरान की आयत है जो कहती है जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से लड़ाई कैसे हाँ की जाती है वो बताएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अल्लाह से लड़ाई अल्लाह की फितरत जो है उससे फितरत के खिलाफ करना, कुफ्र करना, ये अल्लाह से लड़ाई है। कहाँ लिखा है? कुफ्र का कहाँ लिखा? डिफिनेशन क्या है ये बताओ। नहीं इस आयत में कुफ्र कहाँ ही लिखा? कुफ्र ही कुरान बता में रही कहाँ है ना, लिखा? कुफ्र ही लिखा है। हाँ? कुरान में कहाँ लिखा है? अरे कुफ्र का मतलब है, तुमको बताता हूँ मैं, सुनो। अल्लाह से कुफ्र लड़ाई, कुरान में कुफ्र लिखा हुआ है। अल्लाह से लड़ाई को कुरान एक्सप्लेन करता। अल्लाह से लड़ाई यही है ना। अल्लाह से लड़ाई अल्लाह के भैया आपने बोला अल्लाह से ना लड़ाई तुम, कुरान में कहीं पे अल्लाह से रेफरेंस है लड़ाई, इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम के साथ किताल करना अल्लाह से किताल करना है तुम्हारा। इस्लाम का किताल कौन कर सकता है भाई? इस्लाम तो एक थियोलॉजी है, इस्लाम थ्योरी के है। साथ किताल क्यों नहीं होगा? जब तुम इस्लाम वालों के साथ किताल करोगे तो इस्लाम का ही किताल होगा ना। कैसे हैं यार, कहाँ से कैसे? लॉजिक उठा के लेके आते हैं? कौन सी लॉजिक है यार तुम लोगों की? क्या लॉजिक अरे है तुम लोगों की? तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है। अब तुम मुसलमान से तुम किताल करोगे तो इस्लाम को मिटाना हुआ ना, मिटाना ही मिटता है होगा। इस्लाम? इस्लाम मिटता है? हाँ? इस्लाम मिटता है? इस्लाम मिटेगा? क्यों मिटेगा इस्लाम? अरे वाह, इस्लाम माशाअल्लाह इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम सुनो ये इस्लाम इनके जो है, एक मिनट रुको भाई, सॉरी मैं म्यूट किया। माशाअल्लाह आज ये भाई के मुंह से सब अच्छी अच्छी बातें निकल रही है। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा इस्लाम मिटेगा तो इन लोगों ने कहा इस्लाम मिटेगा। माशाअल्लाह, चलो बहुत अच्छा। अच्छा मेरे इनके घर पे सामने सुनो भाई अगर आपके घर पे अगर आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई आए हो ना, अगर आई होगी ना, तो अभी जो आपने बातें बोली ना, इस खुशी में अरे हमारी भाई, तरफ से खा लीजिए। अरे भाई दिवाली की मिठाई उठाई तो लात मारूं मैं दिवाली की मिठाई उठाई को कुछ मानता नहीं। माय दिवाली गॉड, ये वो, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ अगर किसी का भी नाम लिया जाए उसे नहीं मानता। एक सेकंड भाई लोगों, अब आप लोगों को पता लग गया, जितने लोग हमें सुन रहे हैं 3300 लोग इसमें सुन रहे हैं, किसी मुसले को दिवाली की मिठाई मत भेजना। आपकी मिठाई लात लगेगी, डस्टबिन में जाएगी, भाई पैसे आपके जाया होंगे, मुसले खाएंगे नहीं। तो अगर आप कोई एडम भी भाई, मुस्लिम दोस्त है, मिठाई एडम मत अगर भेज इसने दो अल्लाह के उसको। सिवा किसी का नाम लिया तो मैं तो नहीं मानता भाई, साफ बात। एडम भाई हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा दिवाली के दिन भाई। अभी भी 5 छः की मिठाई बची हुई है मेरे पास। क्या कर रहे हो मियाँ? किसी मुसले को मिठाई मत दे देगा। देने का क्या, लेने का ही नहीं। हमको अल्लाह के सिवा किसी का नजर चाहिए नहीं भाई। हमको फितरत पे रहने का है। अल्लाह की फितरत है, इस्लाम की फितरत। हमको कुफ्र की फितरत पे थोड़ी ना रहने का है। कुफ्र नफरत की फितरत। कुफ्र मतलब तुम्हारा आपस का तुम्हारा नफरत है, तुम्हारा बात सुनो, अमन के खिलाफ तुम्हारा इल्हाद है। हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? अरे हल्दीराम जल्दीराम पूछ रहा हूँ, हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? ये बिचक क्यों जाता है यार आदमी बीच बीच में? अरे भाई मैं बोल रहा हल्दीराम जल्दीराम को काय को ला रहे हो भाई? उसको खाली मैं पूछ रहा हूँ हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? नहीं, मैं किसी का नाम देखता नहीं, जो मिलता है मैं नाम नहीं देखता। काजू की बर्फी नहीं खाई कभी हल्दीराम की? खाते गए जिसका नाम। हाँ? अरे हल्दीराम की काजू की बर्फी नहीं खाई कभी? अरे भाई मैं नाम और दाम नहीं देखता हूँ, मैं खाने का मतलब रखता हूँ मैं, बस दूसरा यानी कि हिंदुओं के हाथ की बनाई हुई मिठाई खाई है तुमने? किसी का भी हो, खाने से मतलब अगर उस पे गैरुल्लाह के नाम का नजर होगा
तो उसे नजर कब होता है? दिवाली की हमने मिठाई में नजर कब होता है? नजर लोग मतलब बाजार नाम से लेना, खरीदते हैं, लोगों के घरों में भेज देते हैं। नजर मतलब उस पे नाम लेना, तो नजर हो गई ना। नजर का मतलब यही हो गया कि तुम कौन सी नजर है भाई? अल्लाह के सिवा एक तुम्हारे देवी देवताओं का नाम डाल रहे हो उसके ऊपर, तो वो जाहिर सी कहाँ बात है डालेंगे? हराम है। एडम भाई एक नाम आर्गुमेंट देना डालो या मुझे, मत डालो, तुमने तुम्हारी नजर सुनो तो सुनो इस्लाम, तुम्हारी नजर तो थी ना उस पे, नजर तो थी कि तुमने भाई तुम्हारे तुम्हारे अरे देवी देवताओं भाई का जो कर रहे भाई हो मना रहे हो, इसी वजह से भाई तो तुम डाल, इसी वजह से तो तुम सुनो इस चीज को सुनो दे रहे हो, सुनो जाहिर सी सुनो बात है सुनो उस पर अच्छा नजर पड़ी है, वो हराम है। अरे सुनो ना, एक लाइन में बोलो साहिल भाई को। साहिल भाई, ये लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। ये लोग मिठाइयों के मामले में खुद ही जलेबी बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं, टेंशन ही खत्म। जलेबी बर्फी सब खाते हैं भाई, मगर हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं। नहीं, कोई मिठाई तो जो हिंदू बनाता है वो तो हराम अपने भगवान हमको का नाम लेके हराम शुरू करता है ना। सुनो हराम सुनो, का नहीं अरे देखना सुनो है। हाँ सुनो, जब कोई हिंदू हाँ की दुकान से आप मिठाई लेते हो, वो हाँ जब मिठाई बनाना शुरू करता है, वो बिस्मिल्लाह करके तो नहीं ना करता, वो तो कहता होगा जय महादेव, जय भगवान, थैंक नहीं यू नहीं, सो वेरी मच, मेरी अगर आज वो की मिठाई करता होगा, मुस्लिमों में वो बेहतरीन करता तौर पे होगा, बिके, और आप मुस्लिम वो वहां से करता जाके ले होगा लेते ठीक हो। है। अल्लाह के नबी ने कहा, एक औरत थी, एक औरत एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हमारे घर गोश्त आता है। हजरत आयशा ने कहा हमारे घर गोश्त आता है, तो क्या उस पे हमें शुबा रहता है कि उस पे अल्लाह का नाम लें या ना लें, नाम लिया गया है या ना लिया गया है, तो हम क्या इसे खा लिया करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। तो जब 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 हाँ आपको दिवाली की मिठाई आए तब भी खा लिया करो, क्या मसला उसमें? बिस्मिल्लाह बोल के हाँ खा लो। हाँ, उस वक्त दिवाली की मिठाई नहीं खाएंगे, अब उस पर नजर पड़ गई ना, उस पर नजर आ गई तो नहीं खाएंगे यार ना भाई। तो क्या यार, पागल है आप पड़ ये गई कहना तो चाहते हो, दांत के सुनो नोक पे। आप ये कहना चाहते हो कि आपका खुदा काफिरों के खुदा से कमजोर है। अरे भाई अल्लाह का अल, 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 अल्लाह को तुम कमजोर समझ रहे हो, जब तुम्हारे को अल्लाह की अभी पड़ी नहीं है, जब तुम्हें अल्लाह की पड़ेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कितना मजबूत है। अल्लाह इसीलिए तो छूट दिया हुआ है कि तुम कमजोर हो। नहीं, ये कौन सी झूठ है कि वो यार, ये कैसे की झूठ है? अरे यही तो चीज अच्छा, छूट अल्लाह दिया हुआ कि मजबूत तुम है? कमजोर, अल्लाह कहता नहीं है हमने तुम्हें कमजोर बनाया है। अल्लाह मजबूत है मजबूत भाई? मजबूत है। अल्लाह मजबूत है कैसे? मतलब क्या, कैसा मजबूत है? ऐसा लोहे एकदम जैसा? टाइट है, अल्लाह ताला हट्टा छूट कट्टा है? दिया हुआ है, अगर अल्लाह अजाब आएगा तो अल्लाह ऐसा तोड़ के रख देगा कि दोबारा उठने भी नहीं पाओगे तुम लेकिन लोग। अल्लाह अल्लाह अच्छा, साहिल में मैं बताऊं अल्लाह कितना मजबूत है। अगर इल्हाद मैं करोगे, बताऊं, अल्लाह उबैद अल्लाह के उबैद फितरत से इल्हाद उबैदी करोगे तो अल्लाह उबैदी ऐसा बेगम तोड़ देगा उबैदी बेगम रुक, कि मैं बताता हूँ। दोबारा अल्लाह उठने के इतना लायक नहीं इतना रहोगे। इतना ताकतवर है कि उसने कोरोना हम्म, डाला अपने हर में हम्म, काबा के अंदर, और हम्म, लोग जो है ना 6 हाँ, 6 8 8 फुट दूर बैठ के नमाजें पढ़ना शुरू हुए, और हर में काबा का हाँ, तवाफ रुक गया कई दिनों कई हफ्तों तक। अल्लाह ताला इतना मजबूत है अल्लाह के उसने अपने ही घर में अजाब दाखिल कर दो दिया। दो लोगों, अल्लाह ताला दो नजरिया नहीं डालता है। अल्लाह ताला ये नहीं डालता है कि ये काबा के अंदर नहीं फैलेगा, भाई ने यहाँ अपने फैलेगा, वहाँ अपने ही घर में अजाब अल्लाह डाल ने दिया अल्लाह ने। वहाँ बुरा है, वहाँ पे अगर बुरे लोग साहिल, हैं तो वहाँ अल्लाह पे ने भी अपने ही पड़ेगा। घर में अजाब डाल दिया यार, ये क्या बात हुई? हाँ सही बात साहिल, जाहिर सी बात मजबूत है। बंदा अपने ही घर में अजाब डाल दे। अगर तुम्हारे घर में एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, तो जाहिर सी बात है कातिल और अमीन अमान दोनों के ऊपर फितने पड़ेंगे ना। अभी फितने में से अरे भाई जो काबिल है, भाई वो तो भाई निकलेगा ना, जो अमीन है वो भाई तो लेगा ना उसकी भाई यार, अल्लाह का अजाब काबे में क्यों आया? काबे पे नहीं आएगा ना अल्लाह का। वो तो उसका अपना घर था। अरे तो अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है ना, इब्तिला आजमाइश किया में है ना, अजाब डाला ना अपने घर में, इब्तिला अजाब कौन किया है, डालता है? डालेगा ही। अब अल्लाह तो साहिल सबको अगर साहिल आजमाएगा, अगर साहिल अगर ताकत अल्लाह वाला हो, सबको आजमाएगा, सुन सुन अल्लाह सुन, सबको आजमाएगा, ऐसा थोड़ी अबे ना सुना कर, एक दो कर कान देंगे। है तेरे पास, एक मुंह है, बोल नहीं जाता है, भौं भौं की तरह सुनता है नहीं, तो ये म्यूट किया मैंने। अगर किसी बंदे के पास ताकत हो और वो अजाब हाँ डालेगा, वो अपने घर पे तो नहीं डालेगा, वो दूसरों के घर में डालेगा। अल्लाह कितना हाँ, ठुल्ला है बेचारा कि तो उसने अजाब अपने ही घर में डाल दिया। अल्लाह दो दो नजरिया नहीं करता है अपना घर। अल्लाह ताला फितरत सलीम देखता है। ओए होए 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 होए। अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह अगर अगर कारपेट अगर बॉम्बिंग करता बंदा है। सुन सुन सुन, अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग, अगर सुन सुन बंदा सुन, अल्लाह साहिल भाई, अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग करता है। अल्लाह नहीं देखता कि उसका अपना है या पराया है, वो कारपेट हाँ, बॉम्बिंग जो करता आए है। उससे अपना अच्छा तो अभी पराया का। नहीं हो सकता, यार अपना भी एक मिनट रुको, रहेगा, एक मिनट रुको। अपना भी रहेगा तो वो भी पराया रहेगा। अगर अगर वो अल्लाह के फरामीन पे नहीं चल रहा है अच्छा, तो मेरे को अल्लाह एक उस बात पे भी बताओ डालेगा अजाब, दोनों पे कि अजाब डालेगा। अल्लाह ज्यादा
भाई मेरी बात कौन सुनो, सा अजब? अब ये बताओ कि अल्लाह ज्यादा मजबूत है, अल्लाह ज्यादा कारसाज है कि जो आज की टेक्नोलॉजी आ रही है कि भाई जिसको टारगेट करना है, यानी अगर मिसाइल भी बनाते हैं, जहां पे हाँ टारगेट करना है वो टारगेट उसी को ही लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। तो अल्लाह हाँ से अच्छे तो इंसान की टेक्नोलॉजी है यार। इंसान अरे जैसे हर ज्यादा जगह ताकतवर पर हो ये गया सुनो है। फेल क्यों हो जाता है? हर इंसान जगह ज्यादा अरे पर ताकतवर पहले है। ये क्यों बात फेल हो जाता सुनो है यार? सुनो, ये जो तुम टेक्नोलॉजी बोल रहे हो, ये टेक्नोलॉजी, ये सब असबाब है, ये सब असबाब है। और 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 ये जो किताबें हैं ना, किताबें ये अहकाम है। यार अल्लाह जिन ये वाला किताबों से अल्लाह ये अहकाम वाला लेके सबक यूज क्यों नहीं कर लेता? असबाब लेते हैं। सुन लो, अल्लाह क्यों नहीं किताबों यूज से कर लेता? अहकाम लेके असबाब लेते हैं, तब जाके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये मत अरे बोल अल्लाह, कि अल्लाह, अरे सुन तो ले, जवाब क्या देगा तू जब तू सुनता नहीं है? मेरी बात अल्लाह ऐसा सुन सबक क्यों नहीं यूज कर लेता कि टारगेट बॉम्बिंग करे? कारपेट बॉम्बिंग क्यों कर टारगेट रहे है? बॉम्बिंग। अरे तो करेगा ही ना। तुम जब दुनिया को फितना का अड्डा बनाए हो, तो तुम्हें तो अल्लाह ताला मिसाइल ही देगा ना बनाने के लिए, तुम्हारे को इसी में डालेगा ना। तुम फितने अबे का अड्डा डंगर, बनाए ये हो, नहीं पूछा मैंने। तुम्हारी मैंने ये पूछा औरतें अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग नंगी क्यों करता है? घूमेंगी, तुम चड्डा को सिर्फ पहन के मुशरिकों को घूमोगे। मारे ना, अपने घर में क्यों जाप डाल रहा है? अरे अल्लाह अपने घर में ही भाई अपना भी दो अपना एक ही और दूसरा मुझको भाई, बोले यार, पता लगे अपना ही कोई जवाब दूसरा दे भाई, सके। सुन लेना तो पूरा जवाब अल्लाह देता हूँ। तो कारपेट कौन बॉम्बिंग क्यों क्या कर रही है, पता करे बजा जरा के किसी रख से। देता हूँ ना। बात कर ले, हिम्मत है तो। अल्लाह अबे ताला डंगर, तू रिपीट करी सबके जा रहा है, क्या डालेगा, बात अपने करोगे से सर? क्यों नहीं देगा? अपना ही गैर है, अपना ही गैर होगा। अल्लाह की इबादत नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है तो अच्छे हुकूकुल्लाह मुस्लिमों को इबाद क्यों नहीं मारता करेगा। है? अरे अल्लाह अच्छों को भी डालेगा। जब जाहिर सी बात है, जब तुम अम्र बिल मारूफ नहीं करोगे, मारूफ का अम्र नहीं करोगे, मुनकरात से नहीं करोगे, तो तुमको अल्लाह ताला अजाब में हाँ डालेगा। उसमें ना, अच्छों को लोगों को लेकिन भी वो डालेगा। अपनों को भी मार हदीस देता है ना। डालूगा ऊपर। 2 हाँ, नंबर हुआ ना 2 नंबर क्यों हुआ? समय कैसे म्यूट पे 2 था। नंबर हुआ? 1 नंबर पे डाल रहा हूँ मैं। यार। अल्लाह 2 नंबर हुआ ना, अपनों को मारी जा रहा है। मैं अच्छा, अपने मतलब अपने अल्लाह घर 2 में इसका गोली नंबर। मार मतलब दूं? ये है एडम, हाँ इसका मतलब ये है भाई के हिसाब से कि वो जो हज पे कुछ कुछ सालों में कभी अभी लास्ट टाइम पे क्रेन गिरी थी और कई सारे हाजी जो है उसमें मर गए थे, ये असल में अल्लाह उसके उनके ऊपर, उन हाजियों के ऊपर इसलिए अजाब डाला था क्योंकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुला रहे थे और बुराई से नहीं रोक रहे थे, इस वजह से अम्र अपने बिल घर पे बुला मारूफ के उन पे क्रेन नहीं डाला है। अनिल मुनकर। अल्लाह हाँ, ताला वही कह कहता रहा है हूँ। हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी अदा करना है। तो इस अम्र वजह है से ना। उन हाजियों को मारा अगर था। अगर नहीं करोगे तो तुम नहीं कर, ये वजह नहीं रहता है। उसके अंदर अच्छे लोग भी चले जाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि उसमें अच्छे लोग भी जाते हैं, मगर उन्हें एक मिनट, एक उन्हें मिनट। उन्हें उनकी फितरत पे उठाया जाएगा। अच्छा, एक मिनट रुको भाई। इस बंदे ने जितना आज अल्लाह को एक्सपोज किया है, यही बंदे थे जो बोले अल्लाह लड़ाता है इंसानों को। और उसके बाद और एक चीज जो है, अल्लाह जो है वो जैसे एडम ने अल्लाह बताया आजमाने के कारपेट लिए बॉम्बिंग। लड़ाता है, अरे रुको ना कुफ्र पे यार, लड़ाता है। रुको। हाँ ठीक है, मेरे को बात तो कंप्लीट करने दो, लोगों तक रखने दो। ठीक है, कर ले कर। अच्छा, अभी मैंने एक मिसाल इनको दिया था कि जो लोग हज पे जाते हैं, और अभी जो रिसेंटली मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले यह हादसा हुआ था, बेचारे वो हाजी लाखों रुपया, उसमें से कई हाजी ऐसे होंगे जो जिंदगी में अपना भला नहीं देखे, अपनी जिंदगी नहीं जिए, बल्कि पैसा इसलिए बचाए ताकि वो अल्लाह के घर का दीदार करे, अल्लाह उनसे खुश होगा। अल्लाह ने वहां पे उनको बुलवा के उनके ऊपर से ऐसी क्रेन गिराई कि वो सब चपक के मर गए। वजह ये थी कि अल्लाह उनको अजाब इसलिए दिया क्योंकि वो नेकी की तरफ लोगों को नहीं बुला रहे थे, अच्छाई की तरफ नहीं बुला रहे थे और बुराई से रोक नहीं रहे थे लोगों को। ये है अल्लाह आपका, अच्छा, ये जो ये है इस्लाम। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, ये फर्ज कफाया है या फर्ज ऐन है? फर्ज हाँ आयन है, भाई उबैद भाई, फर्ज आयन है, कहाँ लिखा? फर्ज आयन है। अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना फर्ज आयन है। कहाँ लिखा? अल्लाह कहाँ लिखा है? फर्ज आयन मतलब बिल्कुल फर्ज है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम नहीं करोगे, फर्ज नहीं कफाया वो करोगे होता है। फर्ज तो कफाया और फर्ज ऐन में फर्क बता। फर्ज आयन मतलब जरूरी है, और फर्ज कफाया? फर्ज किफाया मतलब कि अगर करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी तुम्हारे लिए साहिल, ठीक है। इससे मजीद तुम्हारे बात लिए करनी चाहिए। एक चारा है निकलने का। नहीं समझ में आएगा, नहीं हाय समझा हाय हाँ। यार। तो अच्छा एक ये गुड जो न्यूज सुने हो ये क्या जो एडम, जब तक बोल रहे हो ना, उबैद अल्लाह भाई की बात नहीं लाठी जब करते। पड़ेगी ना, हाँ हाँ ये हाँ हाँ, बात बोलो याद बोलो। रखो, ये बात याद रखो। ये दुनिया जो है ना फितरत पर है। दुनिया कौन सी वाली? दुनिया दारे कौन सी असबाब वाली? है, असबाब।
कौन सी फितरत पे है? फितरत पे है। अगर फितरत कौन फितरत सी वाली सलीम, फितरत पे है? फितरत सलीम, सलीम क्या मेरी फितरत है दुनिया की? सलीम किसकी है? सलीम सलीम किसकी है? किसकी? वो तो अनारकली का सलीम था। फितरत सलीम है, फितरत नहीं, सलीम। वो तो अनारकली का था सलीम। अनारकली की है, टॉफी की है, वो छोड़ दो। फितरत सलीम बोल रहा हूँ, सलीम तो सुनो तुम। अनारकली का था। तो अनारकली पेट में गई है और टॉफी भी पेट में जाएगी। नहीं भाई, किस पेट में जाएगी? मैं तो कह रहा मेरे हूँ मैं सलीम बोल तो रहा हूँ अनारकली का फितरत था। फितरत होता है। एक तो तुम्हारी फितरत इल्हाद की फितरत है, इस्लाम के साथ इल्हाद कर रहे हो। अगर ये बताओ, अल्लाह का अजाब आया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय अल्लाह के। ये बात याद रखो। तो अल्लाह भी नहीं, वो फितरत अल्लाह हमारे पे मैडम एक मिनट, उबैद भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह जब हम पे अजाब डालेगा तो हमारे साथ और बाकी के जो मुसलमान है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं मुस्लिम एरिया में रह रहा हूँ तो अल्लाह जब अजाब देगा, अल्लाह तो कारपेट बॉम्बिंग करता है, कारपेट अजाब देता है, बस सैलाब तो लेके आएगा। मतलब हमारे साथ जो है वो मुसलमान भी उसमें मरेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। जो जो लोग ईमान 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 के वाले जो रहते मोमिन रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हाँ, बचा भी लेता है। मगर हाँ, जो लोग बिल्कुल इल्हाद पे ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर रहते हैं ना, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। बोल इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि उसके साथ मोमिन अच्छा मुसलमान भी मतलब ये हादसों में, समझे। मतलब भाई ये कहना चाह रहे हैं, कितना अच्छा अल्लाह है देखो, कि जो हादसों में मुसलमान मर जाते हैं असल में वो पक्के मुसलमान नहीं है, वो गड़बड़ी वाले मुसलमान हैं, इस वजह से वो हादसे में उनकी भी जान गई है। हाय, वाह 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 रे मेरे अल्लाह। अब वो दो फरिश्तों का क्या बना जो आगे पीछे खड़े होते हैं सुनो बचाने के सुनो लिए? सुनो सुनो, वो हाफिज फरिश्ते हैं, वो किधर जाते हैं उस एक वक्त? बात बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। हम्म। जब अम्र बिल मारूफ नहीं करेंगे, मारूफ अरे का अम्र डंगर, नहीं ये सबसे करेंगे, पहले पूछा था मैंने, सुन ले। वो फर्ज किफाया या फर्ज ऐन, उसका रेफरेंस दिया नहीं, तुझे पता ही नहीं फर्ज किफाया क्या होता है। हटा दो इन्हें, मैं तो कह रहा हूँ और भी फर्ज किफाया लोग किफाया भाई। तो ये मत होता जाना है, तुम। सुनो फर्ज किफाया ये होता है कि अगर पूरी कम्युनिटी में से चंद एक ने भी कर दिया ना, तो सबकी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है। ये फर्ज किफाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, नमाज जनाजा, नमाज जनाजा को पूरी की पूरी कम्युनिटी को अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर उस मोहल्ले से कुछ लोगों ने भी अदा कर दिया है तो पूरी हो गई ऑब्लिगेशन। सो डोंट यू डेयर टेल मी कि फर्ज कफाया कुछ और होता है। तुम लोगों को अंब का पता नहीं है, तुम लोग डिबेट करने आ जाते, तुमने अंब का नहीं पता। अंब भाई जाके तुमको केले का नहीं 100 पता रुपए है। किलो मिलते हैं, जाके ले लो, तुम्हें अच्छा अंबों का पता लगेगा अंब किसे कहते हैं। अरे अच्छा, यहाँ इनसे 30 मैं एक रुपए सवाल किलो करता मिलता है हूँ, भाई। उबैदुर रहमान खान मुझे एक बात बताओ, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, इसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है? हाँ सब शामिल है, हम मारूफ अच्छा में सब अगर, शामिल है। शिर्क हाँ शिर्क का इनकार करना, अच्छा शिर्क का अच्छा आपके कुफ्र का सामने, सब का शामिल होगा। आपके अच्छा हाँ आपके एरिया में एक मंदिर हाँ है मिसाल के तौर हाँ पे, वहां पे शिर्क हो रहा है, हाँ। ये मंदिर में आप क्या कैसे यूनिटी हो रोकोगे? रही होगी, शिरकी हो रहा होगा ना, सही क्या कर रहा है यार। हाँ आप कैसे रोकोगे? हाँ? कैसे रोकोगे उसको? हमारा काम है अम्र करना, उनको दावत देना, अमन और सलामती की दावत देना है उनको दावत से नहीं कि मान भाई ये रहा शर है, वो, नहीं मान शिर्क रहा वो। शर नहीं है, दावत से नहीं मान रहा, दावत से नहीं मान रहा। शिर्क शर है। वो शर करेगा तो कैसे मनाओगे? उसके ऊपर जुल्म आएगा, उसके वो ऊपर दावत जुल्म से आएगा। नहीं मान, अरे मेरे नहीं आएगा भाई तो वो दावत से, उसका वबाल अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी वबाल देगा। अल्लाह ताला ने कहा है तो तू तो अंब हो जब गया। लोग करते हैं तो उसे दुनिया में भी अजाब होता है। अरे भाई उसे तू तो जब फिर अंब हो अजाब गया ना, होगा, तूने तो नहीं रोक सका ना, अमर बिन मारूफ नहीं हाँ कर सका, नहीं नहीं कर रहे हैं नहीं ना, अनिल मुनकर नहीं नहीं कर अनिल सका। मुनकर नहीं कर सके। हाँ, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सका। नहीं करेगा तो अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह तो का तू तो अजाब कुछ नहीं आएगा। कर सका ना अंब, तो वो कारपेट बामिंग में तू भी हम और केले की रुलेगा ना फिर। छोड़ना अच्छा भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उबैदुर अल्लाह का रहमान साहब मैं अजाब एक आएगा ना एग्जांपल, उसपे। तो अच्छा तेरे में भी मैं एक आएगा ना। एग्जांपल देता हूँ, मेरे एडम पे इस कैसे तरीके से आएगा? एग्जांपल देते हैं, मैं एक मिनट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अरे मैं रुको यार, तो उबैदुर रहमान मेरे पे साहब रुको आएगा ना, तो मैं बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे आप समझो कि आपके पास इतनी पावर है, ठीक है, आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, वो भी ऐसा बॉम्ब है जिससे आप टारगेट किलिंग कर सकते हो, यानी उससे दूसरे मुसलमान जो है अगर आपने टारगेट बनाया तो उससे दूसरे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बात है यार, रिलीजियस रोकने फॉर्म की, आ गया। हाँ देखते ना भाई क्या करेंगे आपके एरिया में, या मान लो कि आपके सामने वाले बाजू वाले स्टेट में या बाजू वाले मुल्क में
धड़ल्ले से शिर्क हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रही है, सब हो रहा है, हाँ। आपके पास आपने उनको समझाया, ठीक है, दावत दी इस्लाम की, वो नहीं मान रहे, ठीक है, अब आपके पास सलाहियत भी है बॉम्ब की शक्ल में कि आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, टारगेट बॉम्बिंग आप कर सकते हो उस शिर्क को रोकने के लिए, क्योंकि वो बातों से नहीं मान रहे, तो आप क्या करेंगे? बॉम्ब से वो जो शिर्क का गढ़ है और वहां पे जो लोग हैं उनको उड़ा दोगे, रोकोगे, या क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं, उनको शर से रोकना है। शिर्क होता है, शिर्क है शर, फसाद, जुल्म। हाँ, शिर्क जो करेगा, शिर्क इन्ना शिर्क अल जुल्मुन अज़ीम, बहुत मशहूर आयत है। रोकोगे कैसा? भाई आपके पास भाई बॉम्ब चुप रहे। हाँ, तो भाई आपके पास बॉम्ब है, शिर्क जुल्म है, जुल्म। हाँ, क्योंकि अरे रोकोगे वो हो रहा, जो मैं बता रहा हूँ भाई, वही बात बोल रहा हूँ, सुन लो भाई। और जो शिर्क होगा तो वहां पे शर होगा, जुल्म होगा। शिर्क शर से बना हुआ है। शिर्क का मतलब शरीक करना भी होता है, और उसी का मस्दर है शर। लफ्ज़ शर समझ गए हम। अभी आगे बताओ कि रोकोगे कैसे? उसका रोकने का यही कर सकते हैं कि उन्हें मारूफ का अमर करना है, मारूफ का अमर करना है, उन्हें मुनकरात से रोकना है। अगर वो नहीं मान रहे तो वो फितना होगा, जाहिरी बात है, वो फितना होगा, कुफ्र इनकार होगा, कुफ्र किया जाएगा। कुफ्र का मतलब होता है, कुफ्र होता है नफरत से बना हुआ। कुफ्र मतलब नफरत और इनकार। जब नफरत और इनकार होगा तो फितना होगा, दहशत होगा, फितना होगा, दहशत होगा, फसाद, फितना फसाद होगा, दहशत होगा, जुल्म होगा। और वहाँ की बस्तियां शर्र फसाद और फितने से तर होंगी। किसी में अमन और सलामती नहीं रह जाएगी। डंगर है बहन चो, अरे भाई सज्जन रुक जाओ प्लीज, उनको बोलने दो। हाँ ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि फितरत के खिलाफ जाएंगे। फितरत जो अल्लाह ने बनाया है, फितरत के खिलाफ जाएंगे। कुफ्र पे रहेंगे तो नफरत होगा, इनकार होगा, फिर फितना होगा, शर्रो फसाद होगा, कत्लो क़िताल होगा, नंगापन होगा। फितना होगा तो नंगापन होगा, शर्रो फसाद होगा, फिर कत्लो क़िताल होगा, सब कुछ होगा। अजाब, अल्लाह का अजाब इसी तरह से आएगा। जब कुफ्र करोगे इस्लाम के खिलाफ, तो इसी तरह से अल्लाह अजाब डालेगा। और जब अल्लाह से इलाहाद करोगे तो तुम्हारी कदम उखाड़ के रख देगा, तो तुम ना सर के रह जाओगे ना पैर के रह जाओगे। मैंने आपको अभी म्यूट किया। अल्लाह से बड़ा बेबस कोई एंटिटी नहीं है। एक मिनट सज्जन रुक जाओ, एक मिनट। अल्लाह से बड़ी बेबस एंटिटी नहीं है अल्लाह पे। अरे रुको यार, अल्लाह से बड़ी लाचार एंटिटी कोई नहीं है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बाहर। सुन लो यार मेरी बात। मैं आपसे अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि आप क्या करोगे। अगर मामला अल्लाह पे ही छोड़ना था तो रसूलुल्लाह और सहाबा ने जाके जंग क्यों की? ये ऑप्शन है, या तो इस्लाम कबूल करो या तो जिज़िया दो। ये आजमाइश है, ये दुनिया जो है आजमाइश है। यहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है। शर यहाँ पे तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है। क्या करोगे वो बता दो। जब शर फैल गया है, मैं क्या करूँगा, तुम क्या करोगे? वो बात करूंगा क्या? वो तुम हिजरत कर लोगे या लड़ाई करोगे? सिंपल बात बताओ। तुम इस इलाके में हो, हिजरत करोगे या लड़ाई करोगे? मारूफ करना है, पहले मारूफ करना है। कर लिया ना, आगे चल। नहीं अरे यार एडम भाई क्या अबे 10 मिनट हो गए, मुझे जवाब नहीं दे रहा यार। सिंपल एक मिनट में मैं 2-3 लाइन बोल दूं भाई, मैं तो फिर लंबा टाइम चुप हो जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। उबैद भाई अरे इस्लाम के खिलाफ जैसे तुम लोग लड़ रहे हो, इस्लाम के खिलाफ तो तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। तुम लोग अपनी फितरत पे उतर जाते हो, बुज़दिली पे उतर जाते भाई। 2-3 लाइन। हाँ, एक बार क्या हुआ ना कि दो लोगों की लड़ाई होने वाली थी, तो पब्लिक इंतजार करती रही कि अब लड़ाई होगी। जब बहुत देर तक लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने क्या किया कि दोनों को कूट मारा। रुको ना, पहले म्यूट करो। हाँ, जब बहुत देर तक वो इंतजार करने के बाद लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने दोनों को ही कूट मारा। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी पब्लिक हम लोगों को गाली न बकने लग जाए।
म्यूट कर रहा, बात तो पूरा हो जाने दे, मेरी बात भी अभी नहीं भी हुई है। बात पूरी हो रही है। अरे यार कभी जैसे काय की एक मिनट, हटा he's दो, done. किसी और पे ले लो यार। अच्छा, इनका लॉजिक एक्चुअली इस्लाम से मेल नहीं खाता है। वो इसलिए नहीं खाता अरे है नहीं कि साहिल, ये इंडिया में है साला, इसमें से जवाब नहीं दे रहा। असल में मैंने हदीस दिखा दी है तुम्हें, ये देखो हदीस हाँ। क्या कहती है, तुमने मुंह से रोकना है, मुंह से रोकना है, मिडिल एरिया में है, मुंह से रोको। लेकिन मुंह से रोकने से पहले कुछ कहा है कि लेट हिम चेंज विद हिज हैंड, पहले हाथ से रोकना है साले। अगर नहीं हाथ से रोक सकते, इफ ही कैन नॉट देन विद हिज टंग। इंडिया में बैठे हाँ। उसे पता है वो हाथ से रोकेगा मारा जाएगा। इसीलिए मैंने उनको एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास दिया था ना कि भाई अब तो फेंक दे। नहीं अब फेंकेगा तो वो, बॉम्ब फेंक के मार दे, क्योंकि उसे पता है कि रियल लाइफ में वो जेल में हो जाएगा। इफ ही कैन नॉट देन विद हिज हार्ट। फिर और ये हार्ट से वीकेस्ट ऑफ ईमान है। अरे भाई, अमर बिन मालूफ व नहीं अनिल मुनकर जो है वो फर्दे कफाया है। एक तो सब पे एप्लीकेबल ही नहीं है, कुछ लोग ही हाँ। कर लें तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। इलाके में से कुछ लोग कर ले, लेकिन इलाके में से कुछ लोगों ने किस लेवल पे करना है, हाथ से रोकना है। तू क्यों जा रहा है मंदिर, रुक, हाथ से। मैं तुझे रोकू तेरा नाक तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। हाथ से रोकना है। अगर तुम नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकना है। सेकेंड लेवल, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते, हिंदू मेजोरिटी में रहता है ये, इर्द गिर्द 90% हिंदू है, 99% हिंदू है, ठीक है। तो दिल से बुरा जानेगा, और ये वीकेस्ट ऑफ फेथ है, कमजोर तरीन ईमान है, ज़ईफुल ईमान है। दिल से बुरा जानो। मुंह से कब रोक रहा है, जब ये लोग 10-12% है, याद नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, शिरक नहीं करो। अगर ताकत में आएंगे हाथ से रोकेंगे। अल्लाह का नबी बोलता क्या है, जो फेक नबी है क्या बोलता है, मैं बुत शिकन हूं, मैं आया हूं इस दुनिया में बुतों को काटने के लिए। एग्जैक्टली। अबे 15 मिनट हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया। दोनों उसका रिएक्शन ऐसा था हेडफोन से साहिल, सुन मुझे के बताओ तो। नहीं देगा। मेरे को प्ले करो। एडम, मेरे को लग रहा था कि ये अभी बोलेगा मैं बम फोड़ूंगा, अभी बोलेगा, लेकिन वो उसने डाल दिया अल्लाह पे। उसका रिएक्शन ऐसा था लंदन जाफरी जैसा। अच्छा, अब मैं भी ना बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि साहिल भाई ने बम दिया है तो मैं नहीं बताऊंगा, अब फोड़ेगा। हाँ। इस बंदे ने बम कहीं और ही डाल लिया। हाँ, वो अल्लाह। यार। ओ, हाय, बाप हाय, रे हाय। बाप।